पढ़ रहा था आपके मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में. अवंती फीड्स which was 100x, Natco Pharma which was 70x, Greenply which was 60x, Bajaj Finserv which was 50x. What is this 3Qs framework? So the 3Qs are quality of business, quality of management and quality of balance sheet. आशीष चुग आज के हमारे गेस्ट है आशीष चुग, नोटेड इन्वेस्टर और हिडन जेम्स एडवाइजरी के फाउंडर. ये उनका पहला पॉडकास्ट है जहां आज हम डिकोड करेंगे उनका कोर इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क कि कैसे उन्होंने कंसिस्टेंटली 500 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली हिडन कंपनीज को पिक किया और उनसे मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट किए. आपने जब Natco Pharma में इन्वेस्ट किया, I think that was at less than 8p, Greenply was less than 3p and Avanti Feeds were less than 3.5p. Sort of P was not the only factor. Natco Pharma close to Hyderabad airport was having 350 acres of land. तो उस लैंड की वैल्यू ही कंपनी की मार्केट कैप से ज्यादा थी. बहुत सारे केसेस देखे हैं where at 50 rupees a management which was considered chore becomes intelligent fanatic at 1000 rupees. क्या मार्केट कैप के कंपनीज में इन्वेस्ट करते हुए like 100 crores is the sweet spot? ऐसा नहीं है. Generally I like to buy into very small company. Anything below 500 crore. 4,500 बैलेंस शीट्स सारे लिस्टेड कंपनीज के पढ़ लिए होंगे. Almost सबका पड़ा हुआ. वाओ. एक छोटा सा कंपनी है, उसका मैंने बैलेंस शीट पढ़ा था इन 2012. उसमें लिखा था कि वी आर अमंगस्ट only 5 companies in the world to have that technology for water dissolving film, and the stock was available at 4 crores market cap. 4 crores. So it's been 100 bagger in a matter of 3-4 years. What happened exactly when you invested in GVK Power या Deccan Gold? What was the mistake there and what do you think could have been done better? Deccan Gold is now turning. India is currently the fastest growing large economy in the world, and if you want to take real benefit of this growth story, investing in Indian businesses and companies is non-negotiable. Whether you're already investing in markets or just starting your investing journey, Grow is one of the platforms to do it. Grow's interface is very clean and intuitive. Here you can trade stocks, mutual funds, ETFs, IPOs, bonds, even commodities, all from one app. Portfolio tracking is also very structured. You can see performance, understand sector allocation, and get a complete breakdown of your investments in just a few tabs. And because of this simplicity and trust, Grow has become India's largest stockbroker today. Check out the Grow app today for more details and stay tuned for this entire episode of Conversation with Kushal. So I was going through your journey and मैं थोड़ा पढ़ रहा था आपके मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में, and few of them include Avanti Feeds which was 100x, correct me if I'm wrong, Natco Pharma which was 70x, Greenply which was 60x, Bajaj Finserv which was 50x, Heritage Foods again which was 50x, and I was just going through the list and I was just trying to understand that आपने इतने identify kiya, and there were also some stocks where you also made some sort of mistakes as well. So let's divide this into two parts. One is let's try to understand your framework of investing in these companies, and the second part where we discuss कि आपने क्या गलतियां की, and आप जैसे बता रहे थे कि अभी भी आप mistakes करते हो. So what are like some of the mistakes you made which will be in the latter part of the conversation. So मैं पढ़ रहा था आपके बारे में that आपका 3Qs framework है जो आप use करते हो to invest in stocks. So can you explain to the audience what is this 3Qs framework? So the three Qs are quality of business, quality of management, and quality of balance sheet. So I'll just briefly explain you each. So quality of business is, whether the business has got a moat or an entry barrier. So that is important. What is the longevity of that business? जो हम generally सारे investors देखते हैं. Now the second part is मतलब quality of business के बारे में आपको बहुत सारे public documents और what you are taught in business school सब चीज़ मिल जाएगी आपको. So I follow the same thing. Now as far as quality of management is concerned, देखो क्या है कि small caps में ना you don't get to meet the management. Many of the companies where I have invested or which I have talked about in public domain in earlier years, I have never met the managements. So everything is from the publicly available information about those managements. But quality of management is something, in my view, which is a highly misunderstood concept. तो इसमें क्या होता है कि
यू नो इन नॉर्मल पार्लेंस क्या होता है कि कोई कंपनी अच्छा कर रही हो और उसका स्टॉक प्राइस बढ़ रहा हो, सो पीपल टेंड टू से दैट द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इज गुड. सो इन माय व्यू क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट जो है ना, इट इज डिपेंडेंट अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, लाइक कि मैनेजमेंट का स्किन इन द गेम कितना है. मुझे नंबर वन उस स्टॉक में वो देखना है, स्पेशली इन माइक्रो कैप्स. बहुत लोग कहते हैं कि इन्फोसिस में तो मैनेजमेंट का कुछ स्किन इन द गेम था नहीं, बट स्टिल इट हैज डन वेल. It may be true for Infosys and some of the bigger stocks, but it generally doesn't work in the small cap space. देखिए स्मॉल कैप स्पेस में ना प्रमोटर का स्किन इन द गेम होगा, वो आपके लिए कभी वैल्यू नहीं क्रिएट करेगा, वो अपने लिए वैल्यू क्रिएट करेगा और आप यू विल बी ए बेनिफिशियरी ऑफ दैट वैल्यू क्रिएशन. सो इन माय व्यू स्किन इन द गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंड इज कि वो कंपनी में एसेट एलोकेशन कैसे कर रहा है, जो एक्सपेंशन कर रहा है वो वेदर ही इज डूइंग फ्रॉम इंटरनल एक्रूवल्स, हाउ इज ही व्हाट काइंड ऑफ सैलरी ही इज टेकिंग. सो ऑल दीज थिंग्स कम. बट अगेन एक देयर इज अ वेरी फेमस इन्वेस्टर कॉल्ड रैल्फ वेंगर. उसका एक बहुत फेमस कोट है, गुड मैनेजमेंट टू वॉल स्ट्रीट means nothing more than a company which does 2 consecutive quarters of higher profitability. Make it 3 quarters and you have a great management. I think it is very true for investing, and most investors have got a short memory. अगर स्टॉक 5 साल कुछ नहीं करता, 2 साल अच्छा प्रॉफिट आ जाता है, तीसरे साल अच्छा प्रॉफिट आ जाता है, 2 क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिट आ जाता है, तीसरे क्वार्टर में और अच्छा प्रॉफिट आ जाता है और स्टॉक बढ़ जाता है, तो इन देयर व्यू मैनेजमेंट क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है. और मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं वेयर एट 50 रुपीज अ मैनेजमेंट विच वाज कंसिडर्ड चोर becomes intelligent fanatic at 1000 rupees, and the reverse. So I think while investing, one has to ignore these things, or one doesn't have to go by the already built narratives. Apply your own mind. क्या कर रही है स्टॉक? भाव नीचे रहने का मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट खराब है. आप और बाकी फैक्टर्स देखिए और उसके बाद डिसाइड कर कीजिए कि आपने स्टॉक लेना है कि नहीं. एंड द क्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट, मेरा जो देखने का तरीका होता है बैलेंस शीट का, वो जनरली ये होता है कि वेदर द कंपनी विल सर्वाइव और नॉट. दैट इज नंबर वन. नंबर टू, फॉर मी बैलेंस शीट इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट एंड लॉस. बहुत सारी कंपनीज हैं जो प्रॉफिट नहीं करती. पीपल टेंड टू गो बाय दोज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल रेशियोज, लाइक अर्निंग नहीं है और पीई बहुत ज्यादा दिखती है. तो मैंने देखा है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं बाद में सडनली देयर इज एन इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, और वो जो पी बहुत ज़्यादा दिख रही होती है वो पी कम दिखनी शुरू हो जाती है. तो बैलेंस शीट से आपको जो है, कोई कंपनी केपेक्स कर रही हो, उसकी बैलेंस शीट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा होगा, आपको पता है कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा है, दैट विल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ट्रांसलेट इनटू एसेट, which means the capacity goes up and that may lead to improved profitability. तो ये तीनों चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं. So let's say someone who is new to markets and balance sheet पढ़ना उनको सीखना है, तो आप ऐसे 3 या 4 कौन से की रेशियोज आइडेंटिफाई करते हो बैलेंस शीट में, एंड क्या लगता है आपको कि ये अगर रेशियोज इससे ज़्यादा है तो रेड फ्लैग है कंपनी में? देखो, जो मेरा स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है ना, मैं फाइनेंशियल रेशियोज नहीं देखता. जो फाइनेंशियल रेशियोज देखते हैं ना, और वहाँ पे सब आपके जो डिफाइंड पैरामीटर्स के अंदर आ जाती हैं, उसमें वो स्टॉक ना ऑलरेडी डिस्कवर हो जाता है. मुझे देखना है जब कंपनी लॉस कर रही हो, या फिर कुछ उसमें देयर इज सम शॉर्ट टर्म नेगेटिव इन दैट कंपनी. मेरे लिए जो बैलेंस शीट जो मैं पढ़ता हूँ ना, वो दैट इज फॉर गेटिंग द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस. उसमें बहुत सारे केसेस में ना यू गेट सम इंफॉर्मेशन विच यू मे नॉट बी एबल टू गेट व्हेन यू रीड
आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर्स रिपोर्ट, मैनेजमेंट्स इंटरव्यू, जो बैलेंस शीट में पोर्शंस आते हैं, या फिर वो जो एक इंडस्ट्री एनालिसिस आता है, मैनेजमेंट डिस्कशन आता है. So for analyzing the balance sheet and buying my kind of companies, I give more focus on those things than those financial ratios. तो आप बोल रहे हो आप लॉस मेकिंग कंपनीज में भी इन्वेस्ट करोगे अगर कुछ नेगेटिव बिल्कुल रहा? बिल्कुल करूंगा. एंड क्यों लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे? देखो, लॉस मेकिंग कंपनीज, इसमें आपने देखना है बैलेंस शीट में क्या है उसके. आपको मैं अभी जो है, आई मे गिव नेम्स ऑफ सम कंपनीज. I will like to clarify, I'm not a SEBI registered investment advisor or a research analyst. जो भी मैं जो examples दे रहा हूँ, that is only for reference to the context and for educational purposes. Please don't treat these examples as investment recommendations. हो सकता है ये स्टॉक मैंने पहले कभी लिए हों, आज बेच दिए हों, या आज भी हों मेरे पोर्टफोलियो में, कल मैं बेच दूं. So please don't take these as investment recommendations. तो जहाँ तक लॉस मेकिंग कंपनीज का सवाल है, बहुत बार ये होता है कि कंपनी ने सपोज एक्सपेंशन करें, तो व्हेन द एक्सपेंशन गोज इन ऑन स्ट्रीम, तो क्या होता है कि जो एक्सपेंडेड कैपेसिटी है, फर्स्ट डे में तो 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम नहीं करती. शुरू में हो सकता है 20% कैपेसिटी पे काम कर रही हो. उसमें आपके एक्सपेंसेस तो उतने ही हैं, आपके मैन पावर एक्सपेंस उतने हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपका जो जो डेप्रिसिएशन है वो किक इन कर जाता है, आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट किक इन कर जाती है, विच इज़ एट द फुल वैल्यू ऑफ लोन विच यू हैव टेकन. तो यहाँ पे आपका रेवेन्यू इंक्रीज इतना नहीं आया, बट एक्सपेंस आपका ज़्यादा बढ़ गया, तो आपका एक प्रॉफिटेबल कंपनी भी लॉस में कन्वर्ट हो जाती है. आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल कि मैं लॉस वाले कौन सी कंपनियां खरीदता हूँ. तो वहां पे आपको पता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद, कैपेसिटी टीरिंग प्रॉब्लम्स कम होंगी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 20% से 60% आएगी, 80% आएगी. तो वहां पे ऑपरेटिंग लीवरेज विल कम इन टू प्ले एंड यू विल सडनली सी अ हाई प्रॉफिट. दूसरा क्या होता है कि जब लॉस मेकिंग कंपनी होती है ना, यू गेट दैट कंपनी वेरी चीप because not many people are interested in buying into loss making businesses. तो वहां पे ना आपको डबल एडवांटेज मिल जाती है कि आपका जो ऑपरेटिंग लेवरेज भी बाद में किक इन हो जाएगा और आज आपको स्टॉक भी सस्ता मिल जाता है. तो मेरा जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ना उसको स्टॉक बाय करने का, वो ये है कि आई वांट द स्टॉक एट वेरी वेरी गुड वैल्यूएशन. मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को कैपिटल लॉस नहीं करना. मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आई नो इंडिया इज अ स्टॉक पिकर्स पैराडाइज, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत मिल जाएंगी. बट कैपिटल लॉस जितना, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, देयर विल बी सम केसेस जहाँ पे आपको कैपिटल लॉस यू कैन नॉट, लॉट ऑफ थिंग्स विच आर बियॉन्ड योर कॉम्प्रिहेंशन एंड कंट्रोल, कैपिटल लॉस हो गया. बट व्हेन आई बाय अ स्टॉक, द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू माई माइंड इज रिस्क मैनेजमेंट. मैंने अगर रिस्क मैनेज कर लिया तो सोचो आई हैव वन 60% ऑफ द बैटल. आगे जो कंपनी, उसके बाद प्रोबेबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज भी उसमें कर ली कि अगर कंपनी में ऐसा हो गया, तो इट हैज मोर टू डू विद साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर्स कि आगे के इन्वेस्टर्स उसको, कंपनी को कैसे देखेंगे. सो इफ आई एम एबल टू विजुअलाइज दीज टू थिंग्स, वन, मैनेज माई रिस्क and visualize what can happen in the company. So those are the kind of investments which I would like to get into. So that's why आपने जब Natco Pharma में invest किया, I think that was at less than 8p, Greenply was less than 3p, and Avanti Feeds were less than 3.5p. So basically you try to identify low p stocks, undervalued stocks, and then उसमें invest करके आप वो delta देखो, बनाओगे. उसमें सिर्फ p was not the only factor. I'll just give you an example of Natco Pharma. I think I invested in 2008. उस टाइम पे क्या हुआ था कि Natco Pharma had acquired a US based pharma chain. वो जो होता है ना, मार्केट को उसका एसेट एलोकेशन पसंद नहीं आया, बिकॉज दैट चेन विल इनिशियली मेक अ लॉस. तो वो प्रॉफिटेबल कंपनी विल बिकम less profitable because that loss will be added on to the profit.
बट उसमें क्या था कि वो स्टॉक बहुत टूट गया था उसकी वजह से. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ आया था, बट आई थिंक इट वाज सम 200 to 300 crores market cap at that point of time. I knew that at that point of time, Natco Pharma, close to Hyderabad airport, was having 350 acres of land. तो उस लैंड की वैल्यू ही कंपनी की मार्केट कैप से ज्यादा थी, नंबर वन. नंबर टू क्या था कि नेटको फार्मा वाज डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च. उस टाइम पे देयर वाज वन ड्रग विच दे हैड डिस्कवर्ड, ग्लैटिरेमर एसिटेट, इफ आई कैन रिकॉल द नेम करेक्टली. तो वहां पे ये था कि दे हैड टाइड अप विद वन यूएस बेस्ड फार्मा कंपनी. तो बट उसमें क्या था, उसका इम्पैक्ट आना था फ्यू इयर्स डाउन द लाइन. तो जो स्टॉक जो नीचे आया था, दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ दैट एक्विजिशन ऑफ दैट यूएस बेस्ड फार्मा कंपनी, which was not liked by the market, and it came down to very attractive levels where it was less than the value of the assets which they have. And the वहाँ पे अगर if they are getting into a few million or billion dollar drugs, आगे वहाँ से भी रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी आएगी. और एग्जिस्टिंग बिजनेस से जो है वो 7-8 की पी पे आपको वो मिल रहा था. सो फॉर मी इट वाज अ नो ब्रेनर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. Similarly, Greenply was a profitable company, but it was a large business available at very low valuation. It was available at only 80 crores market cap. 80 crores में कह रहा हूँ, पूरा अभी जो Greenply और Greenlam ये सब जो डीमर्ज हुई है ना, this used to be one company earlier called Greenply. What does Greenply do? Greenply is into plywood and laminates and now MDF and those kind of things. तो वहाँ पे आपको 40 करोड़ का प्रॉफिट था 2009 में या 10 में, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कब मैंने बोला था, और 80 करोड़ में आपको कंपनी मिलती थी. तो बड़ी कंपनी, अगेन प्रॉब्ली द परसेप्शन ऑफ द मैनेजमेंट वाज प्रॉब्ली नॉट, मतलब आपको मिल रहा था ये स्टॉक which people were not willing to look at. तो कई बार होता है ना, लो पी होता है, people tend to feel कि प्रॉफिट सब खत्म हो जाएंगे and that low P will become high P. इसमें मुझे लगा था उसमें ऐसा नहीं होगा. सिमिलरली अवंती फीड जो था उसमें ये था कि इट वाज एट वेरी वेरी लो वैल्यूएशंस. In fact, the entire aquaculture space at that point of time was trading at very low P. But the good thing was, इसमें promoters had done a creeping acquisition from the market at that point of time. It was just about 3.5 P, 5% dividend yield, growth company, वो सब हो रहा था. 100 करोड़ की market cap पे ये company मिलती होती थी. So, these were almost no-brainers where I felt that, downside was restricted. बट क्या होता है कि टू बी ऑनेस्ट कुशल, जब आप ये स्टॉक लेते हो ना, आपको ये नहीं पता होता ये कितना ऊपर जा सकता है. मैंने अवंती लिया जरूर, बट आई सोल्ड आउट वेरी अर्ली. मैंने 100 रुपए में लिया, मैंने 25 रुपए में भी लिया, फिर 100 रुपए में लिया, बट 500-600 में निकाल दिया विद इन 1.5 to 2 years, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं 5 times कर लिया. एंड आफ्टर दैट स्टॉक बिकेम 50 to 100 times ऑल्सो. तो बहुत सारी चीजें हैं जो किस्मत से मिलती हैं आपको, ठीक है. तो बहुत मतलब आप विजुअलाइज कई बार करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ कंपनी जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया, वो लॉस मेकिंग थी, एंड आपने फिर उसको प्रॉफिटेबल कन्वर्ट होते देखा, एंड देन जो ऑपरेटिंग लेवरेज का प्ले किक इन हुआ वो आपने बेसिकली एक्सपीरियंस किया? तो इसमें एक कंपनी थी बालाजी अमीन्स. इसमें क्या हुआ था कि इसने एक दे हैड मनी, दे हैड अ पीस ऑफ लैंड इन शोलापुर. तो इन्होंने एक होटल वहां पे बनाया, और एक फार्मा केमिकल कंपनी बिल्डिंग अ होटल, वो मार्केट को चीज पसंद नहीं आई. दूसरा, वो लोग एक एक्सपेंशन कर रहे थे, और वो बैलेंस शीट में हर बार लिखते थे कि 3 साल से लिख रहे थे कि बस ये अब होने वाला है. एंड दे वर डूइंग एक्सपेंशन इन अ प्रोडक्ट वेयर देयर वाज नो अदर मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, और अपनी टेक्नोलॉजी से कर रहे थे. तो परसेप्शन ये हो गई कि हर बार लिखते हैं
लेकिन ये टाइम पे डिलीवर नहीं करते हैं। बट मेरी जो थॉट थी ना वो ये थी कि अगर ये लोग इतना डिफिकल्ट है प्रोडक्ट बनाना और दे आर डूइंग, मतलब आई न्यू व्हाट दे वर डूइंग, उन्होंने पहले प्रोसेस चेंज किया, फ्यूल चेंज किया, लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग्स दे डिड, बिकॉज ऑफ विच एवरीथिंग गॉट डिलेड। प्लांट एंड मशीनरी भी पार्टली दोबारा आया बिकॉज सम पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कुड नॉट बी यूज्ड। तो उसमें टाइम लग गया, स्टॉक केम टू वेरी वेरी अट्रैक्टिव लेवल्स। इनिशियली कुछ टाइम वो लॉस मेकिंग भी था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और उसके बाद जब इसका एक्सपेंशन कंप्लीट हुआ, देन इट स्टार्टेड मेकिंग वेरी हाई प्रॉफिट एंड दैट स्टॉक बिकेम 50 टाइम्स। तो उसमें ये होता है कई बार कुशल, आप स्टॉक ले लेते हो बट देन यू हैव टू कीप पेशेंस, नंबर वन। नंबर टू, यू हैव टू बी रेडी फॉर ड्रॉडाउन्स ऑल्सो, बिकॉज अगर वहां से सिचुएशन और खराब होती है तो आपका स्टॉक 50% और गिर भी सकता है। और ये स्मॉल कैप्स में जो है ना, क्या होता है कि हम लार्ज कैप्स में 50% की बात करें वो बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब स्मॉल कैप्स में आई हैव सीन स्टॉक गोइंग डाउन बाय 70, 80, 90% ऑल्सो एंड देन बिकमिंग 100 टाइम्स फ्रॉम दोज लेवल्स। तो वो भी होता है। तो उसमें दोनों चीज़ें हैं, वन इज एपिटाइट फॉर रिस्क, जो अगर डाउन जा रहा है तो आपको रीजन पता होना चाहिए कि क्यों डाउन जा रहा है। एंड स्टमक फॉर प्रॉफिट्स, स्टमक फॉर प्रॉफिट्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि आप एक 50 रुपए में स्टॉक लेते हो, 20 रुपए आ जाता है, दोबारा 50 रुपए होता है, आप बोलते हो मेरा भाव वापस आ गया, और आप स्टॉक बेचते हो, शाम को मंदिर में जाके थैंक यू भी करते हो, और उसके बाद आप देखते हो वो 50 वाला 500 रुपए भी हो गए। तो वो जो है ना, मतलब जो ओरिजिनल थीसिस है आपको, वो आपको ध्यान में रखनी है। और आपका जो थॉट प्रोसेस है, जब भाव आप नीचे का भाव देख लेते हो, वो चेंज हो जाता है। आपको ना सेल्फ डाउट होना शुरू हो जाता है कि मैंने तो कहीं गलती नहीं कर दी, और उसके बाद जब दोबारा जाता है भाव तो आप उसको बेच देते हो। मतलब मैं बता रहा हूँ, हमने जो इनिशियल जो मेरा लर्निंग फेज था ना, मैं भी ऐसे ही करता था। सो अभी भी मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, इवन द सीजन्ड इन्वेस्टर, अभी भी मेरे साथ भी शायद ऐसा ही होता है। बट आई थिंक दीज आर थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड के इसमें क्या क्या हो सकता है। आई थिंक बालाजी अमीन्स में फिर मोनीश पबराई ने भी इन्वेस्ट किया था बाद में, राइट? आई थिंक उसके बाद तो देखो क्या होता है कि एक टाइम होता है जब वो रिटेल का स्टॉक होता है, 100 करोड़ की मार्केट कैप में कोई इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड नहीं होता। तो हमारा जो एग्जिट होता है उन स्टॉक्स के अंदर, वो जनरली इंस्टीट्यूशन या फैमिली ऑफिस या म्यूचुअल फंड या बिग इन्वेस्टर्स। तो हमारे लिए तो वही एग्जिट है ना। तो हमारा नहीं तो अगर 50 गुना हो गया, अगर 10 गुना हो गया, तो हम बेचेंगे कहाँ पे? Unless the company scales up and the big investors come. I don't remember exactly उसमें कौन आया था, but generally जो small caps जब when they go through the journey from small to mid to large caps, some big institutions come and take a position. So when you invest in loss making companies जिनका लॉस बहुत ज़्यादा है, let's say 200 करोड़, 300 करोड़ एक्सेट्रा, बट उनका अगर कैश फ्लो पॉजिटिव है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वगैरह, तो देन दैट इज अ गुड साइन अकॉर्डिंग टू, एंड यू विल इन्वेस्ट इन दोज बिजनेसेस। So okay, fine. आपने अच्छा पॉइंट उठाया। So I am currently looking at 2 companies. आप अगर उनको देखोगे ना, these are the companies where for last 2-3 years they are making a loss on the net level. But if you see the cash flow from operations, it is positive. तो अब इसमें देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है आपने वो देखना है कि पहली चीज इसमें लॉस का कारण क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लॉस है यहाँ पे और कैश फ्लो पॉजिटिव है तो ले लेना है। 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। एक तो होता है जो P&L के अंदर लॉस कर रही हो बट कैश फ्लो में बहुत ज्यादा कैश जनरेट कर रही हो, और दूसरी होती है जो P&L में प्रॉफिट कर रही हो बट कैश फ्लोज में लॉस आ रहा हो। तो आई विल गो फॉर द फर्स्ट कैटेगरी, जहां पे P&L में लॉस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स यू हैव टू सी के लॉस क्यों आ रहा है, एंड वेदर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आगे जाके कैन दैट लॉस
get converted into profit. So ये जो दो एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको दिए हैं, लास्ट के 2 साल में जो इसका P&L में लॉस आ रहा है, दैट इज फॉर 2024 इट इज 406 करोड़, 2025 इज 685 करोड़. अब इन दोनों साल में जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, दैट इज 987 एंड 1007 करोड़. So there is huge differential between P&L and cash flows. Similarly, the other company has got net loss of 40 crores in 24, 84 crores in 25, whereas cash flow from operations is 26 crores in 24 and 75 crores in 25. So I will prefer to go in for this category of companies. अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आजकल बहुत सारी एसएमई के स्टॉक्स आए हुए हैं. देयर वाज अ लॉट ऑफ फैंसी, ऑफ कोर्स यू नो पीपल हैव सफर्ड हेवी लॉसेस इन दोज स्टॉक्स, बट अगर आप उन स्टॉक्स को देखें ना, 50% ऑफ दोज स्टॉक्स विल मे बी मेकिंग प्रॉफिट इन द P&L. प्रॉफिट होगा, बट व्हेन यू गो टू कैश फ्लोज, दे मे नॉट बी जनरेटिंग कैश. The reason for that is कि उनका जो कैश है ना, that will be stuck in inventory and receivables. तो आपने जब भी इन्वेस्ट करना है ना, ये सिर्फ P&L देख के और P देख के इन्वेस्ट नहीं करना है, कैश फ्लो कर रही है कि नहीं. और बहुत सारी मैंने कंपनीज देखी हैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनीज विच वर टिल 2 years बैक फेवरेट ऑफ मेनी इन्वेस्टर्स. आप उनको देखो, उस टाइम पे भी देखो, तो देयर वर रेड फ्लैग्स के लॉस, कैश लॉस था हमेशा. आज भी कंपनी कहने को जब मैनेजमेंट बात करती है तो वो बोलती है कि मोट है और कोई काम कर नहीं रहा, बट उनके रिसीवेबल्स देखो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के रिसीवेबल है. ऐसा कौन सा धंधा है विद अ मोड जहां पे आपको कस्टमर 8 महीने तक पैसे नहीं देता? तो आई थिंक, मतलब मैं जो कह रहा हूं, कोई उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. दीज आर बेसिकली कॉमन सेंसिकल थिंग्स विच एन इन्वेस्टर शुड लुक इनटू बिफोर इन्वेस्टिंग. एंड you know, the reason for most of these SME companies were overpriced, they were hyped, and even today that is happening. So I think one has to be very, very careful and analyze these couple of things very carefully. तो आपने एक कंपनी का एग्जांपल दिया, आई वांट टू डीप डाइव देयर. सो आपने बताया 2025 में उनका लॉस था 685 करोड़ का, एंड उनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाज पॉजिटिव 1007 करोड़. तो क्या रीज़न हो सकता है इसमें कि इतना बड़ा लॉस है और फिर भी इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो इतना पॉजिटिव है? देखिए, क्या होता है कि रियल एस्टेट कंपनीज कुछ होती हैं जहाँ पे मोस्ट ऑफ द रेवेन्यूज आर बुक्ड व्हेन they give possession for those apartments or the property. तो इसमें जनरली what happens is कि आपका रेवेन्यू कम बुक होता है, and major part of revenue, or a significant part I would say, is booked when they give the possession. And the second company which I talked about, you know, they are writing off their inventory or the library on a yearly basis. So because of the write-off is nothing but a book entry. It doesn't change the cash flow from your operations. So इसलिए operations में cash flow आ रहा है, but P&L में because there is a write-off, उसमें loss आ रहा है. तो ये वन ऑफ आइटम हो गया ना, राइट ऑफ? हाँ, it is a one-off item, but it may go on for 2 or 3 years also. If they have a, you know, they have talked about it on their con calls and everything कि भाई हम write off कर रहे हैं, and it is a common thing which is known to everybody. What about let's say demerger, arbitrage and strategies where let's say कुछ अगर announcement हो रही है तो वो कैसे आप play out करते हो? For example, you invested in Marico Kaya as well, right? तो उसमें आपका क्या thesis था? Was it because of the demerger thing या क्या, कैसे आपने decide किया? देखो, क्या होता है कि एक बड़ी कंपनी है, वो अपना एक छोटा बिजनेस डीमर्ज करती है. जैसे इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, मेरिको काया में ये हुआ था, अरविंद लिमिटेड में हुआ था. अरविंद लिमिटेड से अरविंद स्मार्ट स्पेसेस निकला था. अभी क्या होता है, जो इन्वेस्टर
का टिक साइज जो है मान लीजिए 50 करोड़ का है, ठीक है? तो वो अगर मैरिको में इन्वेस्टेड है तो he would not be interested in having investment worth 2 crores or 3 crores. Same with the Arvind Smart Spaces. तो जनरली उन लोगों की जो है सेलिंग रहती है which provides retail investors like us to get into those stocks at lower levels. उनके लिए फर्क नहीं पड़ता, उनको 1 करोड़ का लॉस भी हो रहा है ना पूरी इन्वेस्टमेंट में, so they don't bother. They just have to get out of that investment because for them 2-3 crores is too small a size of investing in one company. तो वहां पे आपको कई बार अपॉर्चुनिटी मिल जाती है. I think in the recent times, similar thing has happened with Hindustan Unilever. Quality Walls has got, separated from that. And Hindustan Lever is a big company. Quality Walls is some 6,000-7,000 crores company. So a lot of these big FIIs or institutions may be getting out of these. जिससे 5 लाख करोड़ की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है वो 5-6 हज़ार करोड़ की कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उसका. तो वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को या इन दिस केस जैसे अरविंद स्मार्ट स्पेसेस और मैरिको काया वर सम 100-200 करोड़ जहाँ पे आपको फैमिली ऑफिसेस को रिटेल इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं. तो ये केस में हाउ डू यू इंटरप्रेट, लाइक हर एक जो बड़ी कंपनी है वो डीमर्ज अगर कर रही है एक छोटी कंपनी को, नॉट एवरी कंपनी विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी. सो हाउ डू यू डिसाइड कि हाँ ये कंपनी अगर डीमर्ज होकर सेपरेट यूनिट में जा रही है तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं देखो ऐसा नहीं है, मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग है वो तो सेम रहेंगे. क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, बैलेंस शीट एंड ऑल दोज थिंग्स. द ओनली डिफरेंस इज कि सिंस दीज पीपल आर नॉट कीन ऑन अ स्मॉल बिजनेस, तो आपको वो स्टॉक थ्रोवे वैल्यूएशंस पे मिल जाता है कई बार. आप अगर इनका देखिए अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का या इवन मैरिको काया का, जिस टाइम पे इनकी सेलिंग चल रही थी और उसके 1-2 साल के बाद both these stocks have become 10 to 20 times within 2 years. So that's a short-term opportunity for you. You may not be interested in holding that company for eternity, but because a big institutions is getting out of that company, provides you an opportunity to buy at lower levels. What about your stories of investments in Bajaj Finserv and महाराष्ट्र स्कूटर्स, ये दोनों कंपनीज में क्या थीसिस था? देखो इसमें ना इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. इसमें जो था मार्केट्स वर वेरी चीप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. देखो अब मैं बताता हूँ, जब हमने स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग शुरू की थी ना 2003 में, हम लोग स्टॉक देखते थे, अगर आप पी की बात करो कि 2 की पी 3 की पी वाले स्टॉक, जो 15-20 की पी वाले स्टॉक्स थे ना, दे वर हाईली ओवर प्राइस फॉर अस. तो वो जो एवोल्यूशन होता है ना उसके अंदर के there were a handful of investors investing or researching micro caps between say 2000 and 2008-9. उसके बाद once the returns came in, lot of other people started looking at those companies and seriously researching those market cap those opportunities. तो उसमें क्या होता है कि अभी इतने लोग रिसर्च कर रहे हैं इसमें कि you have to differentiate yourself now. अब वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत बड़ी वाली ना, वो सिर्फ they can be done only on the psychology. Like you have to buy when nobody else is buying. जैसे आपने लास्ट वन देखा, there were no interest in the market. जो छोटे stocks हैं, they were falling like 30, 40, 50%. And if you see the last 15 days, many of those stocks have become, they have gained 30 to 15%, 30 to 50, 60% in a matter of 15 days. तो आपको ना ये चीजें प्ले करनी है. जब सब लोग बेच रहे हो, everybody is throwing in the towel, that is when you have to get in. एंड इसमें फिर जो आपके डॉक्यूमेंटेड लॉसेस भी मैं उनके बारे में पढ़ रहा था. सो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली व्हेन यू इन्वेस्टेड इन जीवीके पावर या डेक्कन गोल्ड? व्हाट वाज द मिस्टेक देयर एंड व्हाट डू यू थिंक कुड हैव बीन डन बेटर? तो जीवीके पावर जो था ना, दे वर द ऑपरेटर्स फॉर मुंबई एयरपोर्ट एंड दे हैड अ फ्यू पावर प्लांट्स.
तो इसमें जो प्रॉब्लम हुई थी, मतलब आई वाज बुलिश ऑन द बिजनेस, बट व्हाट हैपेंड इन दिस केस वाज दे डिड नॉट गेट द गैस एलोकेशन फॉर ऑपरेटिंग देयर पावर प्रोजेक्ट्स. क्या होता है कि व्हेन दे वर पुटिंग द पावर प्रोजेक्ट, government had assured them gas supply, which did not come. Now, that is your problem if the gas doesn't come. You have to pay the loan to the bank. So the company went into NCLT, and all those things got sold. I think airport went to Adani, and power plants also were sold in the NCLT process. And that is what it was a write-off for me. As far as Deccan Gold is concerned, Deccan Gold is now turning around. It's been a long wait for me, but I have got in and out of this stock because even though ये कंपनी ऐसी थी कि 2003 में they got some gold mines allotted, and it was started by a group of Australian investors who were very good in mining of gold. They knew the gold mining like the back of their palm. But what they could not do is that there were so many procedural things to be done, so many approvals required from various government departments, center, state, Gram Panchayat, that they were not able to even mine a single gram of gold. So they only went to the extent of exploration of gold. So in 2003, Godavari Power Group came into this company, and lot of things have started happening after that. So of course, it's been a long wait, but now I'm very positive on this company. Because ये ऐसा business है जहाँ पे ना there is no peer group. और मैंने देखा है जहाँ पे कोई peer group नहीं होता ना, उसका fancy valuation भी हो जाता है. I'll give you an example. एक छोटा सा कंपनी है, उसका मैंने बैलेंस शीट पढ़ा था इन 2012. उसमें लिखा था कि वी आर अमंगस्ट ओनली 5 कंपनीज इन द वर्ल्ड टू हैव द टेक्नोलॉजी फॉर वाटर डिसॉल्विंग फिल्म, एंड द स्टॉक वाज अवेलेबल एट 4 crore market cap. 4 crore. Stock was at 8 rupees, and I think some 5 crores, 5-6 crores का इसका equity होगा. 4-5 crores का market cap था maximum. And but the problem was it was doing zero revenues. Like Deccan Gold is doing zero revenues today. तो वो वाला company भी zero revenue कर रहा था. There was a rights issue at 10 rupees when the price was 8 rupees. The retail investors did not subscribe. Promoter stake went up from some 45-50% to 75%. And in 3 or 4 years' time, that stock went from 8 rupees to some 700 rupees. Wow. I think this was 8 rupees in 2013, and it became in 2017, it was some 700 rupees. So it's been a 100 bagger in a matter of 3-4 years. तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं. इसमें क्या था कि देयर वाज नो पीयर ग्रुप. आप बोलें कौन सी इंडस्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है ही नहीं इसकी, बिकॉज दे आर अमंग्स द 5 कंपनीज इन द वर्ल्ड फॉर this kind of a technology. Similar thing happened with a company called Confidence Petroleum. I am talking about 2004. They had acquired a shell company, and when I studied this company, in the balance sheet it was mentioned that we are amongst Asia's largest manufacturer of the group of LPG cylinders, and this company was available at 3-4 crores का market cap only, and the rest is history. तो उसमें क्या होता है, यू हैव टू टेक अ बेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आपको रेवेन्यू में कुछ नहीं दिखेगा. यू हैव टू हैव योर ओन कन्विक्शन, नंबर 1, एंड यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस. हो सकता है 3 साल तक मैनेजमेंट उसी कंपनी को रिवाइव करता रहे. माई थीसिस वाज कि इन्होंने शेल कंपनी खरीदा है, प्रॉब्ली दे विल मर्ज ऑल देयर बिजनेसेस इनटू दिस कंपनी एंड क्रिएट वैल्यू, बट दैट मे नॉट हैपन फॉर ईयर्स. इट कुड नॉट हैव, आई मीन आई टुक अ रिस्क. मैंने पोजीशन लिया उसमें, बट मुझे नहीं पता था कि ये कब करेगा, वेदर ही विल मर्ज और नॉट. माई ओनली थॉट वॉज कि मैं यहां से कितना लूज कर सकता हूं, जो मुझे लगा मैं यहां से कुछ खोने को नहीं है. तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल जाती हैं,
and coming back to your question about GVK हो गया, Deccan, yes, at one point of time पहले के इंटरव्यूज में उसको मैं फेलियर बोलता था अपना, no more. तो I think I am positive, and I think a lot of activity has started happening in the company. If you come, revenue अभी भी zero दिखेगा आपको, but if you dig deep, you will find a lot of things which are now going to change in the company. And कितना पैसा आपने खोया था इन GVK Power? Like what was the percentage loss? GVK Power तो write off हो गया ना. I पूरा? bought at 7 rupees Okay. and I had to write off my investment. Okay. बट मैंने आपको वही बताया ना, जो हमने सीखा है ना, कि इट शुड नॉट बी सो मच मनी कि आपका सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा. इट वाज अ वेरी What स्मॉल proportion of your net worth was in GVK Power? 0.5-1%, बहुत कम था. And at a time, how many stocks do you hold in your portfolio? Okay, so I think this again comes to your point of concentration versus diversification. I am a diversified investor for the simple reason कि concentrated portfolio मेरा life में कभी होगा नहीं, because I go for the unknown names where very little is known about the company. I am working on probabilities and I am mentally prepared to write off. And another thing is I work with very low expectations. मैं जब स्टॉक खरीदता हूं ना, मुझे पता होता है हो सकता है 5 साल इस स्टॉक के अंदर कुछ ना हो. तो अगर 5 साल के बाद वो स्टॉक मेरे को एफडी का रिटर्न देता है ना, आई एम वेरी हैप्पी. आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्स्ट परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट. कि मैं 10 स्टॉक खरीदता हूं, उसमें से मान लीजिए 2 0 भी हो जाते हैं, जो एक 10 बैगर बन जाता है ना, दैट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स. सो दैट हैज बीन माय थीसिस, माय फिलॉसफी, and I basically work on probabilities and possibilities. Of course, downside मेरे लिए important है. I don't, once stock अगर 3-4 times हो जाता है, even though there is a potential, I wait for the stock to come down to my levels to buy into my desired quantity. बहुत बार ऐसा भी होता है जो नहीं आता, which is an opportunity loss, which is okay. तो opportunities बहुत हैं और कहीं पे मिल जाएगी. तो on an average आप क्या market cap के companies में invest करते हो? Like 100 crores is the sweet spot? नहीं, ऐसा नहीं है. मतलब I am market cap agnostic, but generally I like to buy into very small companies. Very small मतलब कितना? मतलब anything below 500 crores. Okay. is but there may be exceptions. तो अभी इसमें जैसे अगर मुझे सीखना है माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग, स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग, मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँ ये कंपनीज जो 500 करोड़ से नीचे मार्केट कैप है? बिकॉज देर आर व्हाट आई अज्यूम 4000 कंपनीज विथ विच आर लाइक इन द माइक्रो कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी. तो हाउ डू आई आइडेंटिफाई? एंड आप एग्जांपल्स दे सकते हो कि आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, कब आपका फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ ये कंपनीज के साथ, एंड कैसे आपने इंटरेक्शन एज इन फर्स्ट टाइम आपने कंपनी को ढूंढा कैसे? तो देखो, इसमें ना व्हाट आई लुक फॉर इज अ नंबर ऑफ फैक्टर्स. तो सम आई कैन जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन टू यू. जैसे कि कुछ कंपनी में जैसे कुछ नेगेटिव है शॉर्ट टर्म, क्या वो नेगेटिव शॉर्ट टर्म है, क्योरेबल है, या परमानेंट नेगेटिव है? तो अगर मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म क्योरेबल नेगेटिव है, तो आई मे गो फॉर दैट काइंड ऑफ अ कंपनी. अब शॉर्ट टर्म नेगेटिव की बात करें, जैसे मैंने आपको नेटको का एग्जाम्पल दिया, बालाजी का एग्जाम्पल दिया. बालाजी वॉज अ परफेक्ट केस जिसके अंदर शॉर्ट टर्म नेगेटिव था. नेगेटिव वॉज के मार्केट ने उसको परसीव नहीं किया ठीक से एसेट एलोकेशन को, और उसका एक्सपेंशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा था. और एक्सपेंशन हो भी गया तो इनिशियली दे वर वर्किंग ऑन वेरी लो कैपेसिटी. बट मेरे को पता था कि मुझे टाइमलाइन तो नहीं पता होती कि अगले क्वार्टर में होगा या 1.5 साल लगेगा या 2 साल लगेगा. बट ये पता होता है कि जब भी होगा तो इट कैन बी वेरी बिग. सिमिलरली नेटको में जब मैं व्हेन आई वाज बाइंग इनटू दिस कंपनी, बहुत लोग मुझे कहते थे ये जो
यूएस में जो इसने ड्रग डिस्कवरी की है, वो जो लिटिगेशन प्रोसेस है, that can be very long. It can take 3 to 5 years. In fact, it took them more than 10 years. But the stock became 20, 30 times before they could even launch that drug in US. तो मतलब उसमें यह है कि you buy the stock so cheap that one, your downside is minimal. Second is any positive news is considered as a trigger by the market to buy into that stock. तो उसमें बहुत सारे इस तरह के ट्रिगर आए, न्यू डिस्कवरीज एंड न्यू प्रोडक्ट्स विच दे लॉन्च्ड इन द इंडियन मार्केट. तो वो सब की वजह से जो है, इवन बिफोर दे कुड एक्चुअली गेट द फाइनल अप्रूवल टू सेल ग्लैटिरामर एसीटेट, उससे पहले ही स्टॉक 30-40 टाइम्स हो गया था. सिमिलरली बालाजी अमाइंस भी शॉर्ट टर्म नेगेटिव था. तो एक ये हो गया. दूसरा है कि परसेप्शन अबाउट द मैनेजमेंट. बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉक मूव नहीं करता, निश बिजनेस होता है, देयर आर नॉट टू मेनी प्लेयर्स इन द बिजनेस. प्राइम एग्जांपल इज से आयन एक्सचेंज. आयन एक्सचेंज इज अ वेरी गुड कंपनी. ये इतनी पुरानी कंपनी है एंड सो मेनी इंस्टीट्यूशंस, सो मेनी corporates, they were using the ion exchange का जो product for their मतलब it was basically a leader in this business, but the stock was at 80 rupees and they had, even I think at that point of time, the value of the factories and real estate was more than the market cap of the company. And once उस time पे I give an example, their ROE, ROC was very less. Some, I think 7, 8, 10% or something like that. Suddenly in 5-6 years time, the ROE, ROC became double. Profitability started improving. कुछ उन्होंने changes किए internal, and the stock became some 20 times, 25 times. तो कई बार perceptions वाले factor भी play करते हैं उसके अंदर. उसके बाद एक जो मैं बहुत एक्टिवली स्काउट करता हूँ स्टॉक्स को, उसके अंदर सेबी के और स्टॉक एक्सचेंज के ना, देर आर सम सेगमेंट्स के जीएसएम सेगमेंट में आ गया. और जीएसएम क्या होता है? ग्रेडेड सर्वेलेंस मैकेनिज्म. सो लॉट ऑफ दीज स्मॉल कंपनीज वेयर दे सी ए abnormal इंक्रीज इन प्राइस, तो दे पुट इट इन जीएसएम. या पीरियोडिक कॉल ऑक्शन होता था पहले, उसमें देयर यूज्ड टू बी अ आवरली ट्रेडिंग. और ईएसएम अभी हो गया. ईएसएम इज सिमिलर टू पीरियोडिक कॉल, जहां पे ट्रेड्स आर मैच्ड वंस एवरी आवर. तो उसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को द परसेप्शन इज दैट देयर इज सम गड़बड़ इन दिस कंपनी. So that is why SEBI has and stock exchanges have put them in these categories. The companies may be fundamentally good, but it is only a small technical factor which plays for a few weeks or few months. और उसमें सिर्फ ये होता है कि sometimes the margins for buying and selling those stocks are very high. So there are not too many buyers. Margins are for buying, not for selling. Seller can sell, but अगर आपको वो स्टॉक खरीदना है, आपको कई बार डबल मार्जिन देना पड़ता है. So a lot of people are not interested in those kind of companies. उसमें क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है उस कंपनी की, and the seller is always there. So there you get an opportunity to buy at cheap prices. So last 5-6 years, I have bought a lot of companies which have been through this ESM and GSM kind of categories. वहाँ पे आपको सस्ता मिल जाता है stock. Do you also invest in IPOs? IPOs has been a strict no for me for the last many years. क्यों? देखो, IPO जो है ना, नंबर वन, द IPOs are not coming at the right valuations. आप ये देखो, आप IPO का प्रोसेस क्या होता है. आप कंपनी हो, आप 3 मर्चेंट बैंकर को बुलाते हो, यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यूएशन फॉर योर कंपनी. तो उसमें इन मोस्ट केसेस मैं दोबारा बोल रहा हूँ, देयर मे बी say 10% companies which are genuinely good, which actually make money for the investors in the long term. But in most cases, there is hardly anything left for the investor in the long term.
शुरू में बहुत स्पेकुलेशन होती है, जब लिस्ट होता है आपको 1 महीने तक मार्केट मेकर भी होता है, एंड यू नो ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स गो ऑन, विच मैं तो करता नहीं हूँ कभी इन्वेस्टर। जो मेरे फ्रेंड्स इन्वेस्ट करते हैं उनको मैं ये बोलता हूँ, भाई ये जब तक ये हो रहा है, अगर आप कर रहे हो तो निकल भी जाओ उसमें से। 5 साल होल्ड करने वाले नहीं है ये। 5 साल में आपको, आप ये मैं जो स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ ये होता आया है, अभी भी होगा, कि मोर देन 80% ऑफ द कंपनीज will be available at between 50 to 90% discount to the highs which they touched after the IPO. There will be hardly 10% which will actually make money for you in the long term. तो मुझे लगता है सेकेंडरी मार्केट में अभी भी आप खोजो तो आपको ज़्यादा वैल्यू मिल रही है कंपेयर टू द IPOs. आपके जितने SME IPOs थे, अब आप आज देख लो तो वो सब जो है अपने हाइस से 50 से 70-80% आज भी डाउन हो गए हैं, और ये होता रहेगा। इट इज ओनली इनिशियल हाइप जो क्रिएट होती है आईपीओ की। सब चैनल पे मैनेजमेंट का इंटरव्यू आता है, और जो मैं देख रहा था, मतलब आई ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो मैनेजमेंट के लिए इतना आसान है कहना कि आज हम 300 करोड़ कर रहे हैं, अगले साल हम 600 करेंगे, 3 साल के बाद हम 1500 करोड़ करेंगे। आई थिंक बिजनेस इज नॉट सो इजी कि मैनेजमेंट को भी पता हो कि मैं इस साल में इतना 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 कर लूंगा। मतलब एक्सपीरियंस ने हमें यही सिखाया है कि आईपीओ सेल करने के लिए या भाव को मेंटेन करने के लिए कोई कुछ भी बोल दे, बट दीज थिंग्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। इतने सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इतने सारे मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स हैं, इतने सारे रॉ मटेरियल, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, कंपटीशन, इंपोर्ट, इतनी सारी चीज़ें हैं दैट इट इज़ यू नो इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू प्रिसाइजली से कि मैं इस साल इतना करूँगा, उससे अगले साल इतना करूँगा। तो आई थिंक आई टेक दीज थिंग्स विद नॉट अ पिंच बट अ बकेट फुल ऑफ सॉल्ट। मेरे फ्रेंड्स है काफ़ी जो एसएमई आईपीओज में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, एसएमई और नॉन एसएमई जो प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग है ना, दे रिमेन द सेम। तो एसएमई में भी हो सकता है, जो जनरली जो मैंने देखा है ना, द क्वालिटी इज नॉट वेरी गुड, वैल्यूएशन इज वेरी हाई in general, but there may be some very good companies in the SME sector also. I'm not saying that. तो जो है, आप चाहे वो स्टॉक SME का हो या नॉन SME हो, उसको एनालाइज करके सब एंगल से देख के, और कुछ अगर नेगेटिव हो उसके अंदर जो आपको लग रहा हो बाद में पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सब देख के उसके बाद इन्वेस्ट करो। So I was going through your top 5 holdings by value. So Sigma Advanced Systems is the highest, which is showing on the internet, जो defense aerospace industry में। तो इस पे क्या thesis था, and defense industry, aerospace industry में क्या outlook है आपका? देखो, अब अगेन मैं आज भी होल्ड कर रहा हूँ, तो मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। एंड एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू से कि मैंने ये स्टॉक बहुत सस्ता खरीदा हुआ है, मैंने अभी नहीं खरीदा। आई बॉट इट, आई स्टार्टेड बाइंग इट अबाउट 2.5-3 years बैक, एंड आई बॉट इट व्हेन दिस कंपनी वाज देयर वाज अ चेंज इन शेयर होल्डिंग, and it was acquired by a gentleman called Mr. Srini Raju. तो आई बेसिकली वो क्या है कि मैनेजमेंट के बारे में, इवेंचुअली दीज कंपनीज आर ड्रिवन बाय द पीपल हु रन देम। द ग्रुप, यू नो, आई स्टडीड अ लॉट अबाउट द ग्रुप, and I was very very impressed with the way he has scaled up his other businesses. So that was one. Number two was, when they acquired this company, there was a building, unfinished building in this company in Hyderabad. So within, I think, 6 or 8 months of acquiring that company, they finished that building and gave it to Google on rent. And they started realizing a rent of about 40 crores per annum. Company was available at some 200-250 crores. तो अगर आप रिवर्स कैलकुलेशन भी करें ना, कि जो बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं ना, दे सेल दीज प्रॉपर्टीज ऑन द रेंटल यील्ड्स, so that value of that
asset alone was much more than the market cap. That was number one. Then they had invested in a pharma company at that point of time. They had invested some 140 crores in that pharma company. So after that, they had one company which they owned. Sigma Advanced was earlier called Megasoft Limited. Sigma Advanced Sigma Advanced System was owned by the management. They merged this company into Megasoft, and it became a defense company. And then they acquired Advanced had acquired some stake in a company called Indrajal. They're into anti-drone, and they're doing extremely well now. So that is one. And second is they sold that building. They sold their stake in that pharma company. So by doing that, they have now become a focused defense company. They have acquired a company in the UK and also another company here in India. So I think they are now consolidating their entire defense business. I bought it long back at much lower valuations, but I continue to hold it. And अभी भी आप basically hold कर रहे हो and अभी भी you think that it's देखो, मेरा जो जनरली जो होल्डिंग पीरियड होता है, या मेरे को अगर मैं डबल हो गया या ट्रिपल हो गया, मेरे को बेचना नहीं है स्टॉक को. मेरे को ये देखना है कि ये और आगे क्या कर सकता है. आई हैव टू राइड इट. तो ये जो लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स की जहाँ बात होती है ना, एक टाइम होता था कि हम लोग क्या करते थे, सस्ता खरीदते थे. सस्ता खरीदा है मैंने हमेशा, लेकिन सस्ता बेच दिया. जो एवोल्यूशन हुआ है मेरा, जो मेरी लर्निंग हुई है, की लर्निंग ये है कि उसको राइड करना है. बिकॉज एक टाइम आता है जब हमें लग रहा होता है कि हमने 3 times 4 times कर लिया पैसा, लेकिन कंपनी की जो एक्चुअल ग्रोथ जर्नी है उस टाइम पे स्टार्ट हुई होती है, और बहुत लोगों का इंटरेस्ट उसके बाद आता है. सो आई थिंक similar is the case with Sigma Advanced in my view. I plan to hold it. I don't have any intention to sell it at this point of time. So how do you decide कि अभी इसको एग्जिट करना चाहिए? Let's say you say कि अभी 2x हो गया, 3x हो गया, बट फिर भी आप एग्जिट नहीं करोगे बिकॉज आपको लग रहा है कि कुछ हो सकता है ये कंपनी में. तो देन एट व्हाट पॉइंट डू यू डिसाइड कि अभी बस लाइक दिस इज गुड नाउ, 10x हो गया, 20x हो गया, बट नाउ आई हैव टू एग्जिट फ्रॉम दिस कंपनी? देखो, जो आपका सवाल है ना, वो ये है व्हेन टू सेल अ स्टॉक. Yeah. अगर मैं उसको सिंपल वर्ड्स Yeah. में बोलूं, ये जो सेलिंग डिसीजन है ना, ये इट इज मोर डिफिकल्ट देन अ बाइंग डिसीजन. मेरे लिए एटलीस्ट जो है ना, तो इसमें जो मेजर फैक्टर्स आते हैं, और मैं जो सेल करता हूँ ना, आई डोंट सेल एवरीथिंग इन वन गो. आई सेल स्टैगर्ड. बाइंग हो सकता है मैं 1 महीने में करूं, माई सेलिंग में गो ऑन फॉर 2 years ऑल्सो. और जनरली जो है उसमें जो कारण होता है बेचने का, वो ये होता है कि आई एम अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर. मेरे पास कोई सिप तो आता नहीं है हर महीने. तो मेरे को अगर कोई और अपॉर्चुनिटी दिख रही है, उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए, तो उसमें फिर मेरे को देखना होता है कि वो कौन सा स्टॉक है जो मैं पुराने पोर्टफोलियो का जो को मैं बेच सकता हूँ. तो वो जनरली दैट टर्न्स आउट टू बी द वंस जो 5, 6, 10 गुना हो चुका है. तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस. तो बेसिकली जो है ना, इट इज अ अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी जिसके हिसाब से स्टॉक बिकता है. सो कैन वी डीप डाइव हियर मोर? सो आपने बताया सेलिंग में गो ऑन फॉर 2 years ऑल्सो. तो कैन यू गिव एन एग्जांपल कि ओके आपने कितने में खरीदा, फिर 2 साल तक आप कितने स्टैगर्ड बेचते हैं. तो कैसे, थोड़ा एक स्टॉक का एग्जांपल लेके बताओगे कि आपने 2 साल में ऐसे बेचा, तो क्या वैल्यूएशन पे बेचा और क्यों ऐसे 2 साल तक क्यों इतना स्ट्रेच करना है? नहीं, उसमें क्या होता है ना कि आप जो नया स्टॉक खरीद रहे हो, देखो मैं बताता हूँ, आई पुट वेरी स्मॉल से 2% ऑफ द पोर्टफोलियो से ज्यादा मैं स्टॉक में नहीं लगाता. लेकिन जो स्टॉक आपका मैच्योर हो चुका है ना, दैट में बिकम 20% ऑफ द पोर्टफोलियो. Right. So by selling that small amount, you are able to take care of buying into the new stock. So is it fair to assume that आप फर्स्ट ट्रांच जब सेल करोगे तब आप आपका ओरिजिनल कैपिटल रिकवर करना चाहते हो एंड देन आप स्टैगर्ड वे में बेचोगे? मैंने ना आपको एक जनरल एग्जांपल दिया. ऐसा नहीं है कि हर स्टॉक में ऐसा होता है. तो आपने जैसे पूछा ना कि भाई सेलिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है. सेलिंग स्ट्रैटेजी होती है दैट इज रिलेटेड टू कि मेरे पास और नया अपॉर्चुनिटी क्या है.
तो हो सकता है मेरा स्टॉक एक ही बार में ना बिके, मैं बेच दूं, उसके बाद मुझे लगे कि मैं 10% बेच के नया कर लेता हूं, बिकॉज जो नया ले रहा हूं मुझे नहीं पता वो स्टॉक चलेगा या 5 साल नहीं चलेगा। ये तो मेरा स्टॉक इट इज ऑन एन अप मूव, इसमें तो ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन जो मेरा स्टाइल है लेने का वो कंपनी है जहां पे अभी कुछ ना दिख रहा हो, मतलब आई कैन पेशेंटली होल्ड ऑन टू दैट कंपनी फॉर 5 years। तो इसलिए मैं ज्यादा पैसा नहीं डालता उसमें, क्योंकि जो मैंने देखा अगर बहुत पैसा डाल दोगे ना उस स्टॉक के अंदर और वो स्टॉक नहीं चलेगा, यू विल टेंड टू गेट इम्पेशेंट। अभी तो आपका 2% ऑफ द 3% ऑफ द पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है, वो नहीं भी चल रहा ना, यू आर नॉट बॉदर्ड। व्हेन यू बिकम अ कंसंट्रेटेड इन्वेस्टर इन अ माइक्रो कैप कंपनी, देन इट इज मोर, वो आपका साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट करता है। अगर वो स्टॉक 5 साल, बहुत सारे हमारे स्टॉक हैं जो 5 साल मूव नहीं किए, आपने 20% डाल दिया अपने पोर्टफोलियो को एक स्टॉक में और 5 साल मूव नहीं किया, तो आप जो है ना उसको लंबा खींच नहीं पाओगे, आपको थोड़ा सा मूवमेंट आएगा ना, यू विल टेंड टू सेल इट। किसी को अगर इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना है तो ऐसे कौन से 3 बुक्स आप रेकमेंड करोगे दैट ये बुक्स तो पढ़नी ही चाहिए टू स्टार्ट देयर इन्वेस्टिंग जर्नी? देखो मैंने ना बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ी हैं, मैंने जो बुक पढ़ी है ना दैट इज वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट। वो शुरू में जब इन्वेस्टिंग शुरू की थी, बट आई हैव रेड बैलेंस शीट्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कंपनी। मैं पिछले जो 5 साल में जो आईपीओ आए हैं उनका उनका तो नहीं बोलूँगा, बट उससे पहले जितनी भी लिस्टेड कंपनी है ना, मतलब सबका बैलेंस शीट, मतलब जो मुझे लर्निंग बैलेंस शीट से और ऑब्जर्व करके जो मिली है ना, वो देखो बुक्स जो है ना इन्वेस्टिंग में इट्स नॉट रॉकेट साइंस। आपको जो है ना, यू डोंट हैव टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन टू बी अ गुड इन्वेस्टर। I think you have to have the common sense and the right temperament. These two things are more important. You need not be a MBA from the top management schools or engineer from the best of the colleges. आपको बेसिक कॉमन सेंस होना चाहिए और टेम्परामेंट होना चाहिए। मैं जिससे भी बात करता हूँ ना, मैं उसको ये बोलता हूँ जो इन्वेस्टिंग है ना, दैट इज 20% अबाउट द स्टॉक एंड 80% अबाउट यू। आप स्टॉक तो आप रिसर्च कर लेते हो, यू गेट वेरी कन्विंस, सब आप फाइनेंशियल रेशियोज भी कर लेते हो, लेकिन जब स्टॉक 50% गिर जाता है, उस टाइम पे आपका क्या बिहेवियर होता है या दोबारा आपके भाव पे आ जाता है, यू नो दोज थिंग्स डिसाइड हाउ मच मनी 10 people may be buying the same stock, but everybody doesn't make the same money. स्टॉक 100 बैगर हो जाता है, बट कोई इन्वेस्टर उससे 50% लॉस पे निकला होता है, कोई बराबर पे निकला होता है, कोई 200% प्रॉफिट पे निकला होता है, कोई 20 गुना बना के निकला होता है, और कोई 100 बैगर भी बना के निकला होता है। इज द सेम स्टॉक। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि लक इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू डू थिंग्स इन अ वे वेयर यू गेट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ योर सक्सेस बिकम मच मोर। आपको अपना एफर्ट करना पड़ेगा, ऊपर बाकी सब परमात्मा के हाथ में है, वो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, बट सिर्फ ये सोच के कि भाई जो मेरी किस्मत में है वो मेरे को मिल जाएगा, आप एफर्ट नहीं करोगे, वैसा नहीं होगा। तो आप अपना कर्म करो और बाकी सब भगवान पे और अपनी किस्मत पे छोड़ दो। तो आपने बैलेंस शीट्स ऑलमोस्ट सारे लिस्टेड कंपनीज के पढ़ लिए होंगे? ऑलमोस्ट सबका पड़ा हुआ है। 4,500 बैलेंस शीट्स पढ़े होंगे आपने इतने? वाओ। तो मुझे ध्यान है 93 में वी यूज्ड टू गो टू, आई वाज इन बॉम्बे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम बॉम्बे, वहाँ पे उस टाइम पे बैलेंस शीट मिलती नहीं थी, फिजिकल बैलेंस शीट आती थी और आप शेयर होल्डर हो तभी आपको मिलती थी। तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो थे ना, वो एक एक शेयर लेके रखते थे बहुत सारी कंपनीज का, जस्ट टू गेट द बैलेंस शीट। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाके ना, यू कैन सिट इन देयर लाइब्रेरी, इवन गेट अ फोटोकॉपी। फोटोकॉपी उस टाइम बहुत एक्सपेंसिव होती थी। बैलेंस शीट 50 पेज की है तो 50 पेज का उस टाइम पे आई थिंक 2 रुपए 3 रुपए वॉटएवर, मतलब 150-200 रुपए आपको फोटोकॉपी का लग जाता था, विच वॉज बिग मनी फॉर अ स्टार्टर फॉर वन बैलेंस शीट। तो हम वहां जाके पढ़ते थे,
फिर मैंने आई थिंक 96 या 97 में देयर वाज वन सर्विस ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑफिशियल डायरेक्टरी. वो क्या करते थे, 20 वॉल्यूम में दे यूज्ड टू गिव यू द बैलेंस शीट्स ऑफ ऑल द कंपनीज, एंड वीकली बाय पोस्ट आपको जो नई बैलेंस शीट्स ऐड होती थी वो सब आ जाती थी. तो वहाँ से पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद 2003 के अंदर देयर वाज वन प्राइवेट पर्सन. वो क्या करता था, बैलेंस शीट्स लेके स्कैन करके उसको सीडी में बर्न करके, ही हैड ए सब्सक्रिप्शन सर्विस. एवरी ईयर यूज्ड टू चार्ज एक्स अमाउंट, और हर हफ्ते आपके पास जो भी नई बैलेंस शीट्स आती थी वो सीडी में बर्न करके बाय पोस्ट आपको भेजता था. और उस टाइम पे वो जो कंप्यूटर्स होते थे उसमें वो सीडी ही रन होती थी, तो आप सीडी रन करके उसको अपना हार्ड डिस्क में वो करके तो वहाँ पे पढ़ते थे. तो तब से आप मतलब बैलेंस शीट्स पढ़ रहे हो, लाइक राइट मुझे फ्रॉम बैलेंस 90s. शीट से मुझे बहुत लर्निंग जो मिली है मुझे बैलेंस शीट से मिली है. And when you say balance sheet, मतलब this includes all, right? P&L, cash flow and all, or नहीं, just बैलेंस balance शीट sheet? में भी क्या होता है कि आपके पास ना टाइम और वो सब लिमिटेड है. तो आई यूज टू फोकस ऑन जो वो होता है ना, चेयरमैन स्पीच आता है फर्स्ट पेज पे, देन मैनेजमेंट डिस्कशन आता है, या इन्वेस्टर रिपोर्ट आता है. सो ऑल दोस क्वालिटेटिव थिंग्स आई यूज टू स्टडी इन द बैलेंस शीट. ऑफ कोर्स फाइनेंशियल्स भी देखते थे, but qualitative factors were what were more important for me at that point of time. And in terms of renting versus buying a house, so when did you buy your first house? What's your thought on that? Uh, देखो, I fortunately live in the house which was built by my father. मैंने अपना भी घर खरीदा है, but my thought while buying the house was I would say risk management oblique diversification. I am a person who's 100% invested in equity. I have seen all the phases of the market. 2003 भी देखा, where that was the worst bear market which I saw in terms of the length of the bear market. 2009 भी देखा. Then I realized कि मुझे जो है ना, अभी क्या होता था कि स्टॉक कुछ बिका तो नया स्टॉक आ जाता था. तो मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली, और उसमें जब भी डिमांड आती थी कि 15 लाख की डिमांड आई, तो मुझे पता है कि 15 लाख का स्टॉक बेच के मेरे को वहां पे देना है. तो मेरे पास ना एक सिक्योर एसेट हो गया. सो दैट वाज माय थॉट बिहाइंड बाइंग अ हाउस. बट आई नो लॉट ऑफ सम माइक्रो कैप इन्वेस्टर्स. A friend of mine who's into micro caps and who's got stakes in number of small companies, we used to tell him कि अब तो you made so much money, now you should buy a house of your own. He told me कि आशीष जी मुझे बताइए कि मैं 15% रिटर्न तो मैं बिना एफर्ट के कमा लेता हूँ, और जिस घर में मैं रह रहा हूँ ना, आई एम पेइंग ओनली 2% रेंटल यील्ड टू दैट गाय. Why should I buy a house? And I had no answer for that. देखो क्या है, ये ना बहुत थोड़ा सा जो बाइंग अ हाउस और रेंटिंग हाउस है ना, इट इज मोर ऑफ अ इमोशनल डिसीजन. बट इफ यू थिंक बियॉन्ड इमोशंस ना, क्या होता है कि आप नया नया जॉब शुरू करते हो, आप घर खरीद लेते हो, आपके पास पैसे नहीं होते हैं, यू गो फॉर अ मॉर्टगेज. तो आप ना 20 साल तक इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं होते, बिकॉज वट एवर यू आर अर्निंग यू आर गिविंग एज इंस्टॉलमेंट्स टू द बैंक. तो ऑफ कोर्स इट इज अ पर्सनल डिसीजन, इट्स अ इमोशनल डिसीजन, इट्स अ फैमिली डिसीजन. बट माई व्यू इज दैट initially once you built a corpus, your thought may change. But initially, for a young guy who's just started say job, and he's got limited amount of money, he should be, rather than buying a house, try to stay in a rented house for a few years, utilize the money which he saves for investing, and at some point of time where he feels that he's become more stable, and he'll be able to have a balance between investing
and paying for mortgage, that's the time you should think about buying a house. And when it comes to investing, how does a typical day in your life look like now? सुबह से रात का schedule, how do you divide your time? So I am in the market till 3:30, and in the market means I am researching also, watching the market also. So most of my time goes into researching. मतलब वो क्या है कि वो पैशन है. तो ज़्यादा टाइम जो है ना नए स्टॉक देखने में और बैलेंस शीट पढ़ने में, बिजनेस रिपोर्ट्स पढ़ने में, बीएससी के अनाउंसमेंट्स जो आई हैं कंपनीज की वो देखने में, जो से स्पेशल सिचुएशंस लाइक मर्जर, डीमर्जर, राइट्स इश्यूज, सो वो सब उसमें दिन निकल जाता है. And what time do you usually wake up, sleep by? So I work from home, so I am a late riser. I go for a walk, but in the evening, and I sleep also quite late. So any specific resources you would recommend all the viewers who are watching this कि investing में अगर बहुत अच्छे से करना है तो क्या ऐसे sources है, newspapers, newsletters, videos, क्या ऐसे consume करना चाहिए so they can also become smarter? देखो मैं अपने टाइम की बात बताता हूँ. मतलब एक चीज़ जो मैं रिलीजियसली करता था वो रोज़ इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ता था. इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड उस टाइम पे ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वाज नॉट अवेलेबल टू द एक्सटेंट इट इज़ अवेलेबल नाउ. आपके पास आज की तारीख में ना बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. यू हैव गॉट सो मच इंफॉर्मेशन ऑन यूट्यूब. आपके पॉडकास्ट हैं इतने सारे, वो देख के लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं. एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर डूइंग पॉडकास्ट एंड दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब. मतलब बिजनेस का एनालिसिस कर रहे हैं लोग. तो आई थिंक देयर इज अनफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन the public domain and in the social media and media. And अगर कोई लर्नर है, देखो इन्वेस्टिंग इज समथिंग विच कैन नॉट बी टॉट, इट हैज टू बी लर्न. अगर किसी ने सीखना है ना, वो कहीं से कुछ ना कुछ ढूंढ के वो सीख लेगा. और बहुत सारे, अब मुझे लगता है अब जो हमारा जो लर्निंग कर्व था और अब जो लर्निंग कर्व है ना, दैट कर्व इज नाउ द कर्व हैज बिकम शॉर्टन. अब लर्निंग इज वेरी फास्ट. हमें उस टाइम पे देयर वाज नो सोशल मीडिया. हमें दूसरे इन्वेस्टर्स की मिस्टेक पता भी नहीं होती थी. हमारे पास जो ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता था, एक वो मैगजीन आती थी दलाल स्ट्रीट और कैपिटल मार्केट. उसका जो स्कोरबोर्ड आता था ना, जिसमें इक्विटी, सेल्स, बुक वैल्यू और कुछ फाइनेंशियल रेशियोज लिखी होती थी, दैट यूज्ड टू बी द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ऑफ कोर्स बैलेंस शीट्स वाज देयर, बट नोबडी वाज रीडिंग दोज बैलेंस शीट्स. अब तो सब चीज अवेलेबल है आपके पास. अब तो एआई अवेलेबल है, तो आपको क्लॉड को आपने इंस्ट्रक्ट करना है. यू जस्ट हैव टू हैव कि आपको क्या प्रॉम्प्ट देना है, आपको वही सीखना है आज की डेट में. Yeah, आप AI tools यूज करते हो आपके रिसर्च? मैं यूज करना शुरू कर कौन से? दिया. Claude? मैं यूज करता हूँ परप्लेक्सिटी. अच्छा. क्या होता है, मैंने ये देखा है कि आप जो भी एआई टूल यूज करते हैं ना, वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट अलाइंस टू योर थॉट प्रोसेस. कि जिस तरह से आप सोच रहे हो ना, वो आपके हिसाब से अडेप्ट कर लेता है, और जो मेरे को चाहिए वो निकाल के दे देता है मुझे कहीं से भी. तो मैंने अब यूज करना शुरू कर दिया है काफी, बट मैं स्टिल सीख रहा हूँ, मुझे पूरी तरह आया नहीं है. तो बच्चों सिखाते हैं आजकल मेरे को. नहीं, आई थिंक AI टूल्स तो अभी बहुत ही पावरफुल हो गए. हम भी काफ़ी सारा सब्सक्रिप्शन ले लिए AI टूल्स के, एंड काफ़ी हेल्प तो होता ही है, वो तो है ही. नो डाउट, इवन इन द कंटेंट इंडस्ट्री आई थिंक इट्स लाइक फिनोमिनल द वे नहीं, अगर आपको ठीक से यूज करना आता है ना, तो यू डोंट नीड अ एनालिस्ट इन योर ऑफिस. राइट, प्रॉम्प्टिंग करना सीखना है. Amazing. Super insightful conversation. Thank you so much for doing this. Last question that I ask all my guests, it's a tricky one. If you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Mr. Ashish Chugh, what is one question you would like to ask him towards the end? What is one question? Okay. So that could be the key learnings of the last 35 years. So, what are the key learnings of the last 35 years? I think आपने बता तो दिए काफ़ी, but if there's anything तो देखो, other than that. the key learning is emotional intelligence.
वो जो अपने मतलब वो लोग क्या करते हैं कि दे गेट, आपको स्टॉक प्राइस नहीं देखना, आपको कंपनी में क्या हो रहा है वो देखना है। मतलब टिकर सिंबल इज नॉट इम्पोर्टेंट, द कंपनी इज इम्पोर्टेंट, दैट इज नंबर वन. Because the mistake which people make is that they start forming an opinion about the company by looking at the ticker symbol. And second is, मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है कि we buy into the company and when the company starts performing, we build up our position in that company. But in reality, what happens, what I've seen in reality is कि वो जब कंपनी परफॉर्म कर रही होती है तब नहीं करते, जब स्टॉक परफॉर्म करना शुरू करता है तब वो स्टॉक खरीदते हैं. तो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन परफॉर्म कंपनी परफॉर्मिंग एंड द स्टॉक परफॉर्मिंग. सो आई ऑल्सो बाय मोर, बट आई डू इट इन अ वे कि जब कंपनी परफॉर्म करना शुरू कर देती है बट स्टॉक फॉर सम रीजन इज डाउन, so that in my view is an opportunity for me to buy. तो वो डिस्टिंक्शन करना बड़ा जरूरी है और वो समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज लोग स्टॉक परफॉर्मेंस को कंपनी परफॉर्मेंस समझना शुरू कर देते हैं. सो दैट इज वन. और दूसरी चीज जो है स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में ना, स्टमक फॉर प्रॉफिट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो परफॉर्मिंग स्टॉक होता है ना, उसको तो लोग कंपेयर करते हैं कि एफडी रिटर्न से, कि अगर मैं एफडी में इतना इन्वेस्ट करता तो मेरे को कितना 6% 7% मिलता, 5 साल में मैं 100 रुपया मेरा 140 रुपये होता, ये मेरा 100 का 300 हो गया, तो लेट मी सेल इट. डोंट डू दैट, बिकॉज मार्केट आपको कई बार इतना देती है जो आपने सोचा भी नहीं होता. तो बी ऑन द कॉन्टिन्यूअस लुकआउट फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी, और इसमें क्या पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं. बहुत सारी चीजें ना आपको कई बार होता है कि यू हैव टू थिंक लाइक व्हाट द मैनेजमेंट में बी थिंकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि कंपनी के पास कैश है आज, तो वो क्या सोच रहे होंगे, कैश कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे. कि अगर ये डिफेंस वाली कंपनी है, ये सब बिल्डिंग और ये सब बेच दिया है, एक एक्विजिशन इन्होंने कर ली है, आज भी कैश है, दे में ईदर बी यूटिलाइजिंग दोज कैश टू स्केल अप द एग्जिस्टिंग बिजनेस. मतलब मैं कॉमन सेंसिकल बात बताता हूँ कि अगर एक आदमी ने यूके बिजनेस इतना सस्ता खरीदा, दैट कंपनी वाज मेकिंग अ लॉस इन द यूके. अब वो कॉमन सेंस ये कहती है कि वहाँ पे वेजेस ज़्यादा हैं, वहाँ पे कॉस्ट आर हाई. अगर वो सेम टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इंडिया में शिफ्ट कर दे, उसको कस्टमर मिल गया, वहाँ पे कस्टमर बेस उसका ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उसको जो अप्रूवल्स चाहिए कस्टमर से, जो एनलिस्टमेंट हुई हुई है, वो सब ऑलरेडी हुई हुई है, तो वो यहाँ लाके अपनी कॉस्ट को बहुत कम कर सकता है एंड ही कैन बिकम प्रॉफिटेबल वेरी फास्ट. तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो गुड मैनेजमेंट 2 क्वार्टर्स प्रॉफिट एंड 3rd क्वार्टर में ग्रेट मैनेजमेंट हो जाती है. तो स्टॉक बहुत बार ऐसा होता है कि 5 साल जीरो रिटर्न होता है और अगले 2 साल में 50 गुना हो जाता है. आपको मैं एग्जांपल देता हूं. लॉयड मेटल एक कंपनी है, आप देखिए उसका ग्राफ देखिए, 2010 साल तक ये स्टॉक स्ट्रेट लाइन रहा है, बिकॉज दे हैड वन माइन which was in a Naxalite area and they could not mine. Then somebody came, who knew how to manage the Naxalites, took a stake in that company, and that stock became, I think, 500 times or 1,000 times, I don't even remember, in a matter of 4-5 years. Not just the stock, but if you look at the performance of the company, वो सोचो कि 200-400 करोड़ की टर्नओवर से इट बिकेम 8-10,000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू इन सच ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो हैपन. तो आपको देखना है कि ये इन कंपनीज में क्या चेंज हो रहा है एंड यू हैव टू बी पेशेंट. तो पेशेंस इज अनदर क्वालिटी विच इज, जो मैं पहले इम्पेशेंट होता था,
मैं बोलूँगा शुरू के जो 10 साल थे मेरे मार्केट में फ्रॉम 93 टू 2003, वो कहते हैं ना, वो एक कहावत है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा तोड़ा 12 आना, कि जहाँ से शुरू करा था वहां पे पहुंच गए थे, लेकिन लर्निंग बहुत मिली थी उससे। उसके बाद से वो जो मिस्टेक्स पहले की थी ना, जैसे जो इनिशियल मिस्टेक हमारी होती है, चेजिंग स्टॉक प्राइसेस, हम भी स्टॉक को चेज करते थे। दूसरा, टिप्स आती थी मार्केट से, टिप्स के बेसिस पे ले लेते थे, लेकिन वो टिप्स जब आती है ना, वो स्टॉक ऑलरेडी रन अप हो चुका होता है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, मतलब इट कैन बी एन एंडलेस डिस्कशन, बट दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आई वांटेड टू हाईलाइट, के पुरानी जो मिस्टेक्स हैं उसको कैसे। आप फुल टाइम जब आए थे इन्वेस्टिंग में तब बेयर मार्केट था, राइट? दैट वाज द वर्स्ट बेयर मार्केट। एंड तभी आपने डिसाइड किया कि फुल टाइम करना है। वो क्या होता है ना, एक टाइम होता है जब आप कहते हो कि यार मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, हाँ, जो होना था हो चुका था उस टाइम पे। राइट। बट आई थिंक द गॉड वाज काइंड, विद इन 2 years जो था 2003 के बाद, देखो 2000 और 2003 वाला मार्केट में कभी नहीं भूल सकता, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। 2000 में पहले टेक क्रैश हुआ था, उसके बाद 9/11 हुआ था। तो जहां पे हमें लगता है ना कि अब तो वर्स्ट हो चुका है, अब तो मार्केट ठीक हो जाएगा, तो वहां पे एक के बाद एक नेगेटिव इवेंट्स होते रहे थे। 9/11 के बाद अमेरिकन मार्केट्स क्रैश हो गया था। उसके बाद इंडिया में दिसंबर ऑफ 2002 या 2002 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था, उस तब मार्केट क्रैश हो गया था। तो वो सोचो कि एक के मतलब इवन दो, जैसे मेरा एक प्रिंसिपल है जो मैं उस टाइम भी फॉलो करता था, नेवर इन्वेस्ट इन द हॉट सेक्टर एंड द हॉट कंपनी। वो मैंने, आई वॉज नॉट इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, 1 रुपया भी मेरा टेक्नोलॉजी में नहीं लगा हुआ था। In spite of that, between 2000 and 2003, my portfolio was down by about 60 to 70%. मैं अपने आप को ना बहुत सियाना इन्वेस्टर समझता था उस टाइम पे, क्योंकि बाकी सब लोग थे ना, उन्होंने सिल्वर लाइन लिया हुआ था, पेंटा मीडिया लिया हुआ था, और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में थे, हिमाचल, ग्लोबल, ये सब थे। दे केम डाउन बाय 99%। सो आई वॉज डाउन बाय 70-75%, बट उस टाइम पे कैपिटल भी बहुत लिमिटेड होती थी। तो और जो लाइफस्टाइल उस टाइम था, इट वाज अ वेरी फ्रूगल लाइफस्टाइल, सो वी कुड सर्वाइव ऑन वेरी लो मंथली एक्सपेंसेस। तो इसलिए उसका टेंशन नहीं था, घर अपना था, मंथली एक्सपेंसेस की टेंशन नहीं थी, तो आई टुक अ प्लंज। तो आई बिकेम अ फुल टाइम इन्वेस्टर, और आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर अ वेबसाइट। और मतलब मुझे लिखने का शौक था, मुझे रिसर्च करने का, छोटी कंपनीज में हिडन जेम्स निकालने का शौक था। सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड, बट गॉड वाज काइंड, एंड विद इन 2 years ना वो मार्केट बहुत अच्छा हो गया। 2003 एंड बिटवीन 2003 एंड 2005 वाज द बिगेस्ट बुल मार्केट फॉर स्मॉल कैप्स। मतलब मेरा पोर्टफोलियो वाज अप बाय 20 टाइम्स। पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, क्या होता है कि कोई स्टॉक तो 50 गुना हो जाता है, बट वाह, पोर्टफोलियो जो था वो 20 20 टाइम्स हो गया था बिटवीन 2003 एंड 2005। अच्छा, 2 साल में आपका पोर्टफोलियो 2 20 साल गुना में, बढ़ गया। हाँ, बिकॉज वाओ! वो जो 2003 के मैं बॉटम प्राइसेस ले रहा हूँ, वहां से 20 गुना हो गया था, और दैट गेव मी द स्टार्टिंग कैप। क्या कैपिटल से स्टार्ट किया था आपने 2003 में? 2003 में मेरे पास 3-4 लाख रुपए होता था अच्छा, सर। तो आपका वो 80 लाख हो गया 2 साल में। हाँ, 2 साल में 80 So you made your first crore by 2006. या। Six, सो वो क्या था कि उस टाइम पे ना, यू गॉट द इनिशियल कैपिटल टू इन्वेस्ट। yeah. Yeah. Wow, very inspiring. Thank you so much once again for doing this. बहुत बहुत सीखने मिला आपसे, एंड इतना मजा आया, लाइक समझ ही नहीं आया कैसे 1 hour 45 minutes स्पेंड हो गए। आपने 45 minutes का बोला था, बट 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया। मैंने इसलिए But, बोला था बिकॉज यू नो अभी क्या है, रील्स का जमाना है। yeah, I know. People tend to watch those 1 minute Yeah. का reel more aggressively than a 2 hours podcast. I completely agree, but So- समझ ही नहीं आता है कि टाइम कैसे स्पेंड हो जाता है, एंड इसमें से हम रील्स निकालेंगे ही। बट थैंक यू सो मच वंस Thank अगेन you, फॉर thank डूइंग you दिस, so एंड much. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू डू दिस। लाइक आपने 2017 में किया था लास्ट, आई थिंक 9 साल के बाद आप ये कर रहे हो, तो आई एम वेरी ऑनर्ड दैट आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। Thank you, Kushal. It's been a pleasure to do this podcast with you.
Thank you. Thank you. Thank you so much for watching this video till the end. Before we end this video, I'd like to thank Grow for being our title sponsor. With support like this, we can deliver actionable finance content to our audience. So go ahead and download the Grow app today and tell us in the comment section which guest you want so that we can invite them. Also, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो मैंने पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चन है जो मैंने नहीं पूछने चाहिए थे, ऐसे कौन से पार्ट से आपको लगता है ट्रिम करने चाहिए थे, हमें कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि we can give you the most value additive content. Thank you so much once again for watching this entire podcast and stay tuned for more amazing episodes of Conversation with Kushal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.